My dear boys and girls, I am from Baig Institute of Advanced Studies. Again, I would like to repeat that I am from Baig Institute of Advanced Studies. Today, we will start reading test and writing and language test. We are doing SAT 1. Again, I would like to repeat, we are doing SAT 1. So, in SAT 1, there are three things. First, reading test. Second, writing and language test. And then essay writing. Some American university try to communicate that writing is optional, but some university try to prefer essay writing. So there are three things. But again, I'm of the opinion essay writing is an optional subject. So let us today analyze writing and language test. Again, I'm of the opinion that I am from Baig Institute of Advanced Studies and we are doing writing and language test. Now, this is writing and language test. I will start when Kristen Harris is in college, she worked in her university's library and was constantly told, inverted comma, shuru, you really should be studying to be a librarian, semicolon. This is your home, sign of interrogation close. However, now this is there are two questions which we have read. Question number 1 and question number 2. Now let us analyze. Let us analyze. When Christian Harris is in college, she worked in her university. Is that clear? Now we have four options. Option 1, A, no change. Option B, has been. And option C, was. And option D, had been. So we have four options. Now, which should be your answer? Your answer is C, was. Because it's quite clear, अगर हम देखें यानी वो कहता है she worked. Is that clear? And this is the subjective verb. When Kristen Harris is, ठीक है, in college she worked. अब ये वर्क जो है पास्ट फॉर्म है और ये भी यहाँ पर पास्ट फॉर्म भी आएगी तो ये होगा वाज. ठीक है, तो चले फिर हम आगे चलते हैं. लाइब्रेरियन वाज कॉन्स्टेंटली टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यू रियली should be studying to be a librarian, semicolon. This is your home, sign of interrogation close. However, is that clear? So we have four options. The second question having four options. First one, we are doing second question. No change. First, B, your home, comma, semicolon, sign of interrogation, stop, however, Harris. तो अब हम चलते हैं सी वे. योर होम, comma, sign of interrogation, comma, close, however, and Harris. Now D है, D, your home, full stop,
comma inverted comma close, however, comma Harris. तो चार ऑप्शंस है हमारे पास, चार ऑप्शन A, B, C, D. Now which should be your answer? Now let us analyze D. D is your answer. D is our answer. That is your home, full stop, comma inverted comma close, however, comma Harris. अब इसमें ये है however is being used as a connector or transition word and need to be followed by a comma. ठीक है, followed by a comma. Is that clear? ये this is comma. ये मैं आपको दिखा दूं, followed by a comma. Is that clear? और उसके बाद Harris. Again I'm of the opinion कि ये जो however है is used as a connector, try to connect, or transition which word we can say, and need to be followed by a comma. Yeah, this one. Is that clear? After trying to communicate one thing, is that clear? तो चले हम D is our answer. तो चले हम आगे चलते हैं, यानी नंबर 3. मैं इसको पढ़ता हूँ, अब गौर से सुनिएगा. अब हम दूसरा हमने क्वेश्चन किया है. अब हम यहाँ पर आते हैं. हैरिस वाज परसुइंग ए बैचलर डिग्री इन elementary education at the time, full stop. Little did she realize that becoming a school librarian was indeed elective. So elective होता है chosen. So now which should be your answer? Now let us analyze option 3. There are 4 options. That is, first, no change. Second, B, eminent. Number C, threatening. और D, optional. ये threatening तो हो नहीं सकता. Is that clear? और जो है elective भी हो नहीं सकता. elective का मतलब chosen. तो अब हम आएंगे, ये हम एनालाइज करेंगे. eminent. What is the meaning of eminent? Scheduled to happen, going to be happen something. So this is our answer. ये हमारा आंसर है. B is our answer. और ऑप्शनल इज नॉट अवर आंसर. थ्रेटनिंग नो इज नॉट अवर आंसर. और A इज आल्सो नॉट अवर आंसर. अवर आंसर इज B, eminent, scheduled to happen, और B happen and continues thing like that. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है नंबर 3. थोड़ी सी आपको ट्रबल होगी, लेकिन अब ठीक हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब ठीक है. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला चलते हैं. अब हम इसको पढ़ते हैं बड़े आराम से, गौर से, कंटिन्यूसली. आप इस पर कंसंट्रेट करें, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द आंसर. Today, Harris is preparing a story time for a group of young students. Is that clear? Of a young students. तो अब हम देखते हैं कि हम इसका आंसर यानी कि आप ये नंबर 4 कहाँ पर है, ये देखते हैं. नंबर 4 जो है वो हमने देखना है. नंबर 4 किधर है? ये अभी इधर काफ़ी नीचे है. तो चले हम इसको पढ़ते जाते हैं. एक आइडिया डेवलप आपको होगा. Today, Harris is preparing a story time for a group of young students, full stop, as it has done with everything else, the technology revolution has elevated the school library to library
comma, inverted comma, close, start, 2.0, comma, close, comma, and Harris apostrophe possessive tablet integrated story time began when she projects images for the very cranky bear onto a projector screen, full stop. As a child, comma, Harris got excited whenever a puppet appeared during story time, comma, but now she uses the interactive app यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू एनहांस हर ओन स्टोरी टाइम एंड इंटीग्रेट को वैसे तो कहते हैं यूनाइट करना। तो चलें हम देखते हैं नंबर 4 में ये मसला क्या है। अब अगर आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है तो आपको माइंड में कुछ थोड़ी सी बात आ गई होगी। तो चलें फिर हम इसको करते हैं। नंबर 4 पहला है, नंबर 4, ठीक है, नो चेंज। दूसरा है अंडरवेट। तीसरा है एनर्जाइज। और चौथा है एलुसिडेट। अब 4 ऑप्शन है हमारी, ठीक है। अब आप इसको नंबर 4 को देखें, अब अगर आप इसको पढ़ें तो आपको एक बात थोड़ी सी ज़हन में आती है, वो ये है, यानी ओन स्टोरी टाइम एंड इंटीग्रेटेड दिस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अवर आंसर। इट इज अ काइंड ऑफ क्लू विच हेल्प अस टू फाइंड आउट अवर आंसर। अब ये इंटीग्रेट यहाँ पर गलत है, ये ग्रामेटिकली भी गलत है, वैसे भी ये वो कैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, हम 4 ऑप्शन की तरफ आएंगे। पहला है नो चेंज, ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने जिक्र किया इसका। अनरवेट का मतलब कम करना, लेसन द जिक्र। और चूंकि बात हम कर रहे हैं दिस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन, डेफिनेटली दे आर एनर्जाइज, मोर पावरफुल। इज दैट क्लियर? तो सी हमारा आंसर है। सी हमारा आंसर है। डी इज़ नॉट एलुसिडेट का मतलब टू मेक क्लियर। सो हमारा फिर आंसर बनेगा सी, एनर्जाइज मीन टू गिव पावर। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है, यानी अब हम बोलते हैं नंबर 5 की तरफ हमने आना है। As she introduces the children to the problem of cheering up a cranky bear, Harris sees Miguel. Is that clear? ये हमारा 5वां ऑप्शन है। हम 5वां क्वेश्चन पर हैं। अब हम बोलते हैं, हम यानी 5वां जो है हमारे जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है, यानी 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? तो पहला है नो चेंज, ठीक है। दूसरा है बियर सेमीकोलन, हैरिस सीज मिगल। ये सेमीकोलन का यहाँ तलक नहीं है, मैं किस वक्त अलग बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमीकोलन इन पंक्चुएशन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोल ऑफ सेमीकोलन इन पंक्चुएशन। और जो है सी बियर कोलन, अब हम बात कोलन का मतलब कि बाद में हम कोई लिस्ट देना चाहते हैं या कोई और चीज़ बयान करना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट अवर आंसर। डी बियर हैरिस सीज मिगल। तो ये 4 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए इज़ अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। क्यों ए हमारा आंसर क्यों है? बात तो ये है, यानी
इट यूजेज ए कॉमा एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज। ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज पर अपना कॉमे का इस्तेमाल करता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इट यूजेज ए कॉमा एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज। ये जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है उस पर जाकर ये कॉमा इस्तेमाल करता है ताकि सेंटेंस एक स्मूथ चलता जाए। तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए इज ओवर आंसर। अब मैं आता हूँ नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 अब मैं इसको पढ़ता हूँ। यानी हमने पढ़ा ये देखिएगा, नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम करते हैं स्कोरिंग द लाइब्रेरी शेल्व्स फॉर another book by a popular author, full stop। अब नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, मिगल हैड सैड आस्किंग हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इफ यू हैव एनी फनी स्टोरीज कॉमा आई लाइक दोज कॉमा क्लोज और कॉमा। इज दैट क्लियर? और कॉमा। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा गौर से, मैं थोड़ी सी ग्लासेस पहन लूँ। अब मैंने पहन लिया, चले हम करते हैं। अब हम 6 क्वेश्चन पर हैं। मिगल हैड सैड आस्किंग हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी फनी स्टोरीज आई लाइक दोज। ठीक हो गया, आई लाइक दोज, आई लाइक दोज। ठीक हो गया। अब ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है। अब हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, साफ तो आपको नज़र आए। वो तो पैसे तो हमने पढ़ लिया है। अब इन ऑर्डर टू मेक यू मोर फैसिलिटेट, I would like to give you the options. We have 4 options. हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला है, मिगल हैड सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इफ़ यू हैव एनी फनी स्टोरीज कॉमा आई लाइक दोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आस्किंग हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर। अब आप देखिएगा, इसमें एक थोड़ा सा इशारा है आपको, और वो इशारा क्या है? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। हम आस्किंग, इज दैट क्लियर? इट्स अ पार्टिसिपल, और उसके बाद वो कहता है हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर कॉमा मिगल। अब ये नाउन है, देखते जाइएगा। हैड सैड इफ़ यू हैव एनी फनी स्टोरीज कॉमा आई लाइक दोज। अब इसका आंसर बड़ा इजी है, इसका आंसर बहुत इजी है। अब इसमें बात याद रखिएगा, पार्टिसिपल फ्रेज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी नाउन इट मॉडिफाइज। यानी पार्टिसिपल जो है फ्रेज, या दूसरे लफ्ज़ों में, मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये बात कहूँगा, अगर आपके बिगनिंग में कोई इंग फॉर्म है या जीरल वर्ब है, तो उसके ऑब्जेक्ट में फिर हम उसका नाउन या प्रोनाउन देना चाहिए ताकि वो उसको मॉडिफाई कर सके। आस्किंग हैरिस, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल मीन टू टेक पार्ट, ये वही रोल अदा करता है जो एडजेक्टिव करता है। तो चले हम करते हैं, आस्किंग हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर कॉमा मिगल हैड सैड इफ यू हैव एनी फनी स्टोरीज आई लाइक दोज। अब इसमें मसला क्या है? हमारा ये सी आंसर क्यों है? बात तो ये है क्योंकि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, हमें उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है मिगल को मॉडिफाई कर रहा है, तो मिगल यहाँ पर है, ये वाला, ये आस्किंग हैरिस फॉर ए बुक 2 weeks अर्लियर, मिगल इट टाइम टू मॉडिफाई। ठीक हो गया। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जब भी कोई
किसी सेंटेंस में पहला वर्ड आईएनजी का आएगा या जीरल वर्ब का आएगा, ये मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो उसके ऑब्जेक्ट में फिर उसका नाउन या प्रोनाउन देना ज़रूरी हो जाता है। और टेक्निकली हम इसको कहेंगे द पार्टिसिपल फ्रेज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नाउन इट मॉडिफाइज। तो सी हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर ना ए है, ना बी है, ना डी है, तो सी इज हमारा आंसर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलें अगर आपकी इजाज़त हो तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप गौर से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन आ गया। इट विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइंग, कॉमा वगैरह छोड़ दे, हम दूसरा चीज़ें चलते हैं। रिफ्लेक्ट हैरिस, कॉमा द एक्ट ऑफ फाइंडिंग बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड हैविंग them return to say, I really like that one. Are there any more by the author? Is that clear? अब 7वां आ गया, हम 7वां क्वेश्चन है। These days, अब आपने यहाँ से देखना ये वो कहना क्या चाहता है, कॉमा हैरिस would call herself a media mentor as much as librarian because she regularly visits her favorite website for reviewing of apps. Is that clear? Apps and other digital tools to suggest to students and parents. Full stop. Is that clear? तो चले हम आगे चलते हैं। Librarians have always been an important resource for families in a community, comma, ठीक हो गया, but this importance has grown exponentially because of the advent of technology. Full stop. Librarians are offering guidance about new media to address the changing information need in our communities. Full stop. Furthermore, अब हम इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, सुनने जरा गौर से। विच सेंटेंस कुड बी एडेड टू द पैराग्राफ टू मोस्ट इफेक्टिवली एस्टैब्लिश इट्स मेन आइडिया। यानी इन 4 ऑप्शन में आपने ये बताना है कि कौन सा पैरा है जो मोस्ट इफेक्टिवली एस्टैब्लिश द मेन आइडिया। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इसको पढ़ते हैं, अब गौर करें। पहला है हैरिस मेंटेन एक्टिव profiles on multiple social media network to better connect with her student. Option B. B है the role of the school librarian has changed rapidly to meet the needs of students who are digital citizens. Or option C. Librarians still perform many traditional tasks such as putting great literature in the hands of their students. Or option D. In the future, many school libraries are unlikely to have books on the shelves because students prefer इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब 4 हम ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब आपने देखना कि इसमें मेन आइडिया कहाँ पर है, कौन डिस्कस कर रहा है कि मेन आइडिया, ठीक है। इट शुड बी, यू शुड ट्राई टू हैव इन योर माइंड दैट इट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मेन आइडिया। द पैरा डिस्कसेस हाउ द रोल ऑफ लाइब्रेरियन हैज चेंज ड्यू टू एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ technology. It's a kind of change, and what kind of changes, that way have brought. Now we should try to find out the main idea. What should be, which option is trying to give us the main idea. अब main idea जो है वो ये है भाई, ना A है, ना C है, ना D है। main idea है वो B। वो क्या है,
The role of the school librarians has changed rapidly to meet the needs of students who are digital citizens. So B is our answer. B should be our answer. It tried to express the changing things, and definitely B is our answer. Neither A nor B nor and not I mean D. सो चले फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। अब आप आ जाएंगे 8 पर। 8 पर आप आ गए, ठीक है, 8 पर आ गए आप। अब देखिएगा गौर से, इसको बड़े गौर से आपने देखना है। इज आर क्लियर? अब मैं शुरू करता हूँ, आप सुनिएगा, आप देखिएगा गौर से। 8 क्वेश्चन है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इज दैट क्लियर? अब ये है अनेबलिंग एक्सेस टू कलेक्शन ऑफ अदर लाइब्रेरीज कॉमा ऑफरिंग रिमोट एक्सेस टू डेटाबेस कॉमा और दे हाउस वीडियो प्रोडक्शन स्टडीज स्टूडियोज, ठीक है। अब एक और बात सामने आई है, जो ये हमारा आंसर ए बी सी सिंपल मैं आपको बता दूं, हमारा आंसर है डी। डी इज अवर आंसर। अब डी आंसर हमारा क्यों है वो सॉरी फॉर दैट। अब देखिएगा वही चीज़ को रिपीट कर रहा है, वही रूल को रिपीट कर रहा है। enabling access to collection of other libraries, comma, offering remote access to database or housing video production studies. अब इसमें मसला क्या है? It tried to very possibly begins each item in the series with a participle. It's a kind of parallel structure. It's not a parallel structure, but when we try to communicate participle, ठीक है, यानी enabling, is that clear? तो offering नंबर 2, offering, ठीक है, और housing is a kind of parallel structure as well. It tried to communicate I mean that of a participle phrase. तो D is our answer. D should be our answer. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब 9th हम इसको देखेंगे। 9th, ये 9th है। इज दैट क्लियर? 9th, हैरिस फिनिशेस हर स्टोरी टाइम एंड हेड्स अक्रॉस द लाइब्रेरी फुल स्टॉप। ए यंग देखें गौर से, ए यंग स्टूडेंट स्टॉप her and asked, Miss Harris, comma, what's new in the library? What's new in the library? तो हमारा फिर क्वेश्चन बनता है, हमारा क्वेश्चन ये है sorry for that, which sentence would provide evidence to effectively support the main idea of the paragraph? अब ये सिंपल बात है, पहले भी हमने मेन आइडिया को डिस्कस किया है, हमने जो पढ़ा है उसमें भी अब हमें आइडिया हो गया मेन आइडिया क्या है। तो अब हम सिंपली इसको करते हैं, यानी इसका आंसर फिर बनेगा ए बी सी डी। अब 4 ऑप्शन है, तो हमारा आंसर बनेगा सी। सी इज अवर आंसर। सी शुड बी अवर आंसर। सी वो क्या है? टीचर frequently ask Harris to recommend educational apps to support earlier library literacy for their students. So teacher can play the role of media mentor. Is that clear? You know, in this context, teacher can play the role of a media mentor and trusted counselor or guide or thing like that. So हमारा आंसर भी बनेगा सी। सी इज अवर आंसर। सी शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, हम क्यों रुके? तो अब हमारा आ गया 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आ गया। अब देखिएगा, शी चैकल, आप इसको इस तरह प्रोनाउंस कीजिएगा, शी चैकल मिल ऑफ
in a quite hardly audible manner or thing like that. तो 10वां हमारा क्वेश्चन है, 10वां, she chuckles and thinks about the many collection, series, and programs their school library offers. Inverted comma शुरू. Have you seen the trendy 10 list? You need. अब 11वां आने से पहले हम पहले 10 को सॉल्व कर ले. शी चक्कल. अब इसमें मसला क्या है? जब हम कहते हैं शी चक्कल, डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट ए कंफ्यूजन, यानी शी वुड प्रिज्यूमली रेफर बैक टू द यंग स्टूडेंट. तो हम फिर एक कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, क्या हम यंग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या क्या हम कहना चाह रहे हैं. इज दैट क्लियर? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम अब इसको इस तरह करेंगे, इट क्लियरली इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज हैरस. अगर हम हैरस नहीं लिखेंगे तो इट बिकम एम्बिगुअस. तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर फिर बनेगा सी. सी हैरस. ये देखिए, हैरस चक्कल्स. अब हम क्लियर, हम पहले हमें एम्बिग्विटी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यंग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं. अब हमने लिख दिया हैरस चक्कल, तो ये बात क्लियर हो गई. अब हम आगे चलते हैं. 11वां क्वेश्चन है हमारा. 11वां क्वेश्चन, हम 11वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे. तो मैं बोलता हूँ, आप सुनिएगा. जो कहता है, यू रीड द बुक्स ऑन द लिस्ट एंड ब्लॉग योर आइडिया अबाउट दैम. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. ठीक हो गया. पहली ऑप्शन है नो चेंज, दूसरी है दे आर, तीसरी है यू आर और चौथी है डी. ये देयर तो हो ही नहीं सकता. अब हम देखते हैं योर. अब इधर भी यू है तो डेफिनेटली योर इज अवर आंसर. ठीक हो गया. योर इज अवर आंसर बिकॉज हैरस इज टॉकिंग टू सिंगल स्टूडेंट. तो दैट्स वाई योर इज अवर आंसर. ये यानी हमारा नो चेंज इज अवर आंसर. तो फिर हम चलते हैं आगे 12वें की तरफ. 12वें क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. तो चले हम देखते हैं. ये 12वां क्वेश्चन इधर है. ये अगला जो है पैसेज है, अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब ये नया बात शुरू हो गई है. देयर इज नो डाउट दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गाइडेड अमेरिका थ्रू द nascent stages of independence. और 12वां है, and into being a robust economic powerhouse. ठीक हो गया. यानी ये 12वां क्वेश्चन है हमारा. 12वां क्वेश्चन है. तो हमारे पास है 4 ऑप्शंस. हमारे पास है 4 ऑप्शन. यानी पहली ऑप्शन है नो चेंज, दूसरा है बी एंड इनटू द रोल ऑफ ए रोबस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस, सी. ठीक है. और उसके बाद डी. 4 ऑप्शन है. इट्स अ काइंड ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर. अगर ये पैरेलल स्ट्रक्चर है तो ये कह रहा है एंड इनटू द रोल ऑफ ए रोबस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस, यानी प्रेपोजिशन इनटू प्लस नाउन द रोल, थिंग लाइक दैट. तो हमारा फिर आंसर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. तो चलें फिर हम आगे चलते हैं. मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम एन एग्रेरियन टू एन इंडस्ट्री सेंटर्ड सोसाइटी. जब हम बात करते हैं रेनेसेंस की, इंग्लैंड में रेनेसेंस का पीरियड जब आया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड आया, तो वो उसी की बात कर रहा है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या हम रेनेसेंस पीरियड कह सकते हैं, वगैरह वगैरह. रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं. पीपल एस्यूड फार्मिंग इन फेवर ऑफ मोर लिक्विडिटी एंटरप्राइजेज इन अर्बन एरियाज विच पुट ए स्टेन ऑन. इज दैट क्लियर? हम 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं. 13वां. तो चले फिर हम
चार ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला है नो चेंज, फिर दूसरा है more lucrative enterprises in urban area, which put a stain on। ये 13वां क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू हैव। अब 13 क्वेश्चन का मसला ये है कि विदाउट कॉमा द फॉलोइंग क्लॉज मॉडिफाइज अर्बन areas when it tried to modify something else, or in other word, I am of the opinion the entire preceding clause। अब बात यह है कि फिर हम क्लियर हो गए, इसका फिर आंसर बनेगा 13 का बी, मोर लुक्रेटिव enterprises in urban areas which puts a stain on। Is that clear? तो इसमें मसला जो which I have discussed earlier, क्योंकि without the comma following clauses modifies urban areas when it should modify the entire preceding clause, ठीक है। तो इसलिए 13 में जो बी इज़ आवर आंसर, बी शुड बी आवर आंसर। अब हम आगे चलते हैं। 14 फूड क्रॉप्स कॉमा वेजिटेबल्स कॉमा एंड मीट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? एंड मीट प्रोडक्ट। तो अब 13 जो है हम कर रहे हैं अगला 14th क्वेश्चन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, नो चेंज, फूड क्रॉप्स और वेजिटेबल एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो फिर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? हमारा आंसर बनना ये चाहिए फूड क्रॉप्स। इज दैट क्लियर? ये फूड इसने ये दे दिया फूड क्रॉप्स, तो इसमें कॉमा नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी हम वी आर डूइंग 14, तो ये उसने दे दिया फूड क्रॉप्स। दिस इज़ अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, यानी फूड क्रॉप्स, दिस इज़ अवर आंसर फूड क्रॉप्स। कॉमा की हमें ज़रूरत नहीं, अगर कॉमा करेंगे तो एम्बिगुअस हो जाएगा। चले थोड़ी देर आपको प्रॉब्लम होगी और फिर हम आगे चलेंगे और अगला हम करेंगे नंबर 15। इज दैट क्लियर? नंबर 15। अब नंबर 15 की तरफ आप आ जाए। नंबर 15, अब देखिएगा नंबर 15 मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सच एक्सपेंशन ऑन ह्यूमन वर immediately apparent, full stop। Improper water sanitization led to cholera outbreaks in big cities। दूसरा, miners suffered from black lungs after spending hours harvesting coal in dark caverns। Combusted fossil fuels। इज दैट क्लियर? ये 15वां है। तो 15वां जो बनेगा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है, सुने गौर से, द इफेक्टिवली ट्रांसलेशन फ्रॉम पैराग्राफ 2 विच सेंटेंस शुड बिगन पैराग्राफ 3। कौन सा जो है पैराग्राफ जो है वो 3 होना चाहिए। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। विच शुड बी योर आंसर? हमारा आंसर फिर बनेगा ए, ठीक है। दिस In this context, I would like to tell you one thing. This choice connects ideas from the previous, I mean that of the para। अगर आप previous para देखें तो इससे कॉन्टैक्ट उसका बनता है, इसकी कंटिन्यूटी बनती है। तो चलें फिर हम अगला करते हैं नंबर 16। अब हम नंबर 16 की तरफ आते हैं। ये नंबर 16 है, ये देखिएगा फ्यूल्स। अब 16 है, number 16, released unprecedented amount of human made carbon dioxide into the air। ये बात है।
अब क्वेश्चन हमसे वो क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ग्राफिक वुड बेस्ट सपोर्ट द अंडरलाइन क्लेम्स। ठीक हो गया। 16 का वो हमसे ये पूछ रहा है, विच ग्राफिक वुड बेस्ट सपोर्ट द अंडरलाइन क्लेम्स। अंडरलाइन क्लेम किसको ट्राई टू कम्युनिकेट, और हमारे पास चार ऑप्शन ए बी सी एंड डी। हमारा फिर आंसर बनेगा ए लाइन ग्राफ, ठीक है, प्लॉटिंग एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर टाइम। ठीक है। अब इसको अगर हम गौर से देखें, इट ट्राई टू कम्युनिकेट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ओवर टाइम। ठीक है, तो दिस शुड बी अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। अब इसको हम इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अंडरलाइन सेंटेंस ट्राई टू रेफर अनप्रेसिडेंटेड amount of human made carbon dioxide into the air. So this is the thing. I mean the main problem of that of the man-made problem which they try to create to pollute the whole atmosphere. तो चलें फिर हमारा आंसर बनेगा ए लाइन ग्राफ प्लॉटिंग एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर टाइम। तो चलें फिर हम अगला करते हैं, 17 की तरफ हम आते हैं। 17 क्वेश्चन है, विच चॉइस मोस्ट इफेक्टिवली कंबाइंस द सेंटेंस एट द अंडरलाइन पोर्शन। अब हम 17 की तरफ आते हैं, 17 की तरफ आते हैं। ये देखिएगा 17 क्वेश्चन ये है, बी टेकन इनटू अकाउंट, बी टेकन इनटू अकाउंट प्रॉपर रेगुलेशन। तो दिस इज अवर आंसर। इस पर हमने डिस्कस करना है, और इससे पहले कि हम डिस्कस करें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पहले देख लीजिएगा, विच चॉइस मोस्ट इफेक्टिवली कंबाइन द सेंटेंस एट द अंडरलाइन पोर्शन। ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, इट ट्राई टू शो द कैजुअल रिलेशनशिप विदाउट एडिंग unnecessary वर्क बेस। इज दैट क्लियर। तो फिर हमारे चार ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बी सी डी। सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर, बी टेकन इनटू अकाउंट एज प्रॉपर रेगुलेशन। ठीक हो गया। तो सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। नाउ अब हम करते हैं अगला 18। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है। ये देखिएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब याद रखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या क्रिएट कर रहा है, वॉज ऑफ्टन डिस्पोज्ड ऑफ इन द नियरेस्ट रिवर और बरीड। अब ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इन लैंडफिल्स वेयर इट पोल्यूटेड। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फिर बड़ा इजी है, हमारा आंसर भी है ए, यानी प्लॉटेड। ठीक हो गया, प्लॉटेड अवर आंसर। अब हम आएंगे 19 की तरफ, 19 की तरफ। 19 को ये कहता है, ग्रीन हाउस गैसेज वर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये है हमारा क्वेश्चन 19, ये है हमारा। अब हम 19 की तरफ आएंगे, वो क्या पूछ रहा है हमसे वो देखिएगा, विच चॉइस शुड बी एडिड टू द एंड ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंस टू बेटर सपोर्ट द क्लेम इन द प्रीसीडिंग सेंटेंस। ठीक हो गया। अब हमारा 19 का बनेगा, अब मैं पहले कर लूँ ए बी सी एंड डी। तो विच शुड बी आवर आंसर। हमारा आंसर फिर बनेगा बी, होल कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमिंग ट्रीज वर कट डाउन टू मेक
way for new living spaces. So B is our answer. B should be our answer. Is that clear? B हमारा आंसर है. क्यों आंसर है? क्योंकि it type the industrialization resulted in destruction of resources. ये बड़ी आसान बात है. What is the role of what are the drawbacks of industrialization? It tried to destroy the human resources. So that is our answer. This should be our answer. फिर हमारा आंसर बनेगा B. B is our answer. तो चले हम आगे चलते हैं. 20 में क्या कहते हैं वो? न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम caused by depressing इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन है. 20 की 4 ऑप्शन है. वो कौन कौन सी है? पहला नो चेंज, दूसरा अर्बन, तीसरा सब स्टैंडर्ड और चौथा डेवलपिंग. तो अब बड़ा सिंपल बात है क्योंकि हम कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस, इंडस्ट्रियल डिसएडवांटेजेस. तो ये होगा सब स्टैंडर्ड. ठीक है, सब स्टैंडर्ड यानी इट टाइप टू वर्किंग कंडीशन वर कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. वर्किंग कंडीशन इज टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम. और फिर हम आ गए 21 पर. 21 ये देखिएगा. 21 यानी यहाँ से शुरू करते हैं हम. 21 called humankind since its inception was slowly being degraded all. अब हमारे पास 4 ऑप्शन है. 4 ऑप्शन है. वो 4 ऑप्शन कौन कौन सी है? 21 ए नो चेंज, दूसरा डिग्रेडेड ऑल सेमीकोलन, ये तो नहीं आएगा, सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है. सी डिग्रेडेड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं. और डी डिग्रेडेड ऑल. It tried to set off the dependent clause without using punctuation. Again, I would like to repeat. It tried to set off the dependent clause without using punctuation. So, D is our answer. D should be our answer. ठीक है, तो चलें फिर हम करते हैं आखिरी 21 की तरफ हम आएंगे. और 21 की तरफ जब हम आएंगे तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, यानी 21 का आखिरी क्वेश्चन. विच चॉइस मोस्ट इफेक्टिवली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे ऑन द प्रीवियस पेज. ये बड़ी सिंपल बात है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोग्रेस come at a cost that made the promise of a bright future difficult to fulfill. I mean, the Industrial Revolution tried to make a promise, that of the coming generation, that they will try to produce something positive, but they try to create a problem, that kind of negative. So, 4 options है. पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ. पहला है The Industrial Revolution created a new consumer society that replaced the existing farming society. ये तो किसी तक बात सही है, लेकिन हम बात कुछ और, हम मेन टॉपिक से हम बात जाएंगे. Politicians and historians today disagree about the true consequences of the Industrial Revolution. This is not our answer. और अगला, although some analysts suggest that industrialization had many problems, its immense benefit outweigh these concerns. अब हमारा आखिरी, this is our answer. This should be our answer. वो क्या है? Unfortunately, progress came at the expense of environmental and ecological preservation and may well have ruined the future that once looked so bright. So D is our answer. D should be our answer. D is our answer.
ये सिंपल बात है, एक आम आदमी को भी पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो दिस इज़ द मेन आइडिया, मेन टॉपिक ऑफ दिस पैसेज। तो हमारा आंसर है विद डी।